My dear students, welcome to Mathological. In this particular session, we'll be doing some questions on some very beautiful questions on relative speed, and questions will be based on trains. So let us start the session, and if you have not already subscribed to the YouTube channel, you can subscribe to it as well as press the bell icon. First question of the day. The question is, distance between two stations A and B is 470 kilometers. A train from station A starts moving towards B at a speed of 60 km per hour. Another train from station B starts moving towards A 20 minutes before the start of the first train with a speed 80 km per hour. So find at what distance from station A will the trains meet each other. तो डिस्टेंस गिवन है हमें स्टेशन ए और बी के बीच में 470 किलोमीटर्स का. We also know that a train from station A starts moving towards B at the speed of 60 km per hour. So from station A, the train has started with a speed 60 km per hour. From station B, another train starts with a speed of 80 km per hour, but this second train starts 20 minutes before. This second train starts 20 minutes before. This is the check. ठीक है. So station B से start करती है second train with a speed 80 km per hour. बट 20 मिनट्स बिफोर स्टार्ट करती है. यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दिस क्वेश्चन विल बी डूइंग कि पहले हम 20 मिनट्स ट्रैवल करा लेंगे स्टेशन बी से आने वाली ट्रेन को. इजंट इट? सो कितना ट्रैवल करेगी, उसके बाद में फिर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, बिकॉज ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए विल बी स्टार्टिंग 20 मिनट्स आफ्टर द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन बी. तो पहले स्टेशन बी से आने वाली ट्रेन को हम 20 मिनट्स ट्रैवल करा लेते हैं. तो 20 मिनट्स में दिस विल बी ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू 20 मिनट्स यानी कि 1/3 आवर्स हुआ. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दिस विल बी ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू 80/3 किलोमीटर्स. इज दैट सो? तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा बच जाएगा 470 माइनस 80/3. दिस रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 470 minus 80/3. Okay, and now train A is traveling, train from A station A is traveling at 60 km per hour, and the second train that is traveling at 80 km per hour. तो relative distance होगा हमारा, relative speed हो जाएगा 60 plus 80. 60 plus 80 that will be our relative speed. Distance हमें already पता है, remaining distance. तो यहाँ से time taken निकाल सकते हैं. So time taken will be equal to 470 minus 80/3. This is the distance, this divided by relative speed, that is 60 plus 80, which is 140 km per hour. This will be our time taken. But question में time नहीं पूछा है, question ने पूछा है find at what distance from station A will the trains meet each other. At what distance from station A will the trains meet each other. तो station A से start जब ट्रेन की है उसके बाद कितना डिस्टेंस के बाद में they will be meeting. ठीक है. So this is the time, this is travel time for train A. ये travel time आ गया, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा अपना. So this distance जहां पे कि ये ट्रेन्स मिलेंगी, ठीक है, let us say they are meeting somewhere in the middle, let us say this is the point. So this particular distance will be equal to time, this time value, this is 470 into 3, तो ये वैल्यू आएगा 1410 minus 80, 1330, ठीक है, 1330 divided by 140 into 3, this is the time, and this multiplied by speed of the train into 60. सो 0 से 0 गया और यहाँ पे 7 बचेगा, दिस विल बी 30. 3 से जाएगा 10 बचेगा और 7 से 19 टाइम्स जाएगा, तो 19 into 10 190 किलोमीटर विल बी आवर डिस्टेंस. डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए विल बी 190 किलोमीटर. स्टेशन बी से पूछता तो टोटल 470 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, आंसर आया था हमारा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. दिस इज वन वे टू लुक एट दिस क्वेश्चन. ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का. एक और मेथड क्या हो सकता है, ठीक है, उसको भी ध्यान से समझना, ज्यादा फर्क नहीं है, बट कभी कभी वो सेकंड मेथड बहुत हैंडी हो जाता है. ठीक है. तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, हमें ये पता है कि स्टेशन बी से निकलने वाली ट्रेन 20 मिनट्स पहले निकली है, 20 मिनट्स पहले निकली है, तो हम क्या करें, स्टेशन ए से निकलने वाली ट्रेन में 20 मिनट्स का डिस्टेंस ऐड कर दें, 20 मिनट्स का डिस्टेंस ऑलरेडी ऐड कर दें और उसके बाद में अपनी कैलकुलेशन कर लें. व्हाट आई मीन बाय दैट कि ऑलरेडी हमें पता है कि ए से बी का डिस्टेंस इज 470 किलोमीटर्स और स्टेशन बी से निकलने वाली ट्रेन 20 मिनट्स पहले निकली है. तो अगर हमारी स्टेशन ए से निकलने वाली ट्रेन भी 20 मिनट्स की डिस्टेंस पहले निकली होती है, ठीक है, तो थोड़ा पीछे से चलती है और कितना डिस्टेंस होता है 20 मिनट्स में, इट वुड हैव ट्रैवल्ड 60 की स्पीड है, यानी कि 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होता.
ठीक है, स्पीड है इसकी 60, फॉर दिस ट्रेन स्पीड इज 80। अब टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 20 + 470, दैट इज 490। तो टाइम टेकन विल बी 490 डिवाइडेड बाई 140, which is 7/2 hours. Time taken will be 7/2 hours. So the trains will be meeting after 7/2 hours. लेकिन हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए फॉर द लोकेशन वेयर द ट्रेन्स आर मीटिंग। तो अब डिस्टेंस निकालते समय एक चीज को ध्यान रखना है कि हमने 20 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, सो डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए विल बी 7/2 इज द टोटल ट्रेवल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 60, बट इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 20 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी 210 - 20 190 किलोमीटर। या फिर सेकंड मेथड क्या हो सकता था कि हम ये दूसरी वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्टेशन बी से और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 470 में से, दोनों एक ही बात है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस विल बी इक्वल टू 470 - 7/2 × 80। तो 470 - 280 विच इज इक्वल टू 190 किलोमीटर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आंसर आ जाएगा 190। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, a train X departs from station A at 11 a.m. for station B. This is a question from CAT 2001. A train X departs from station A at 11 a.m. for station B, which is 180 kilometers away. And another train Y departs from station B at 11 a.m. for station A. तो ट्रेन X स्टार्ट करती है स्टेशन A से टूवर्ड्स B एंड ट्रेन Y स्टार्ट करती है फ्रॉम स्टेशन B टूवर्ड्स A, एंड बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। स्टार्ट तो सेम टाइम पे हो रहा है। ट्रेन X travels at an average speed of 70 km/h and does not stop anywhere until it arrives at station B. यानी कि नॉन स्टॉप चलती है। ट्रेन Y travels at an average speed of 50 km/h, but ट्रेन Y stops for 15 minutes at station C. तो एक स्टेशन सी है जहां पे 15 मिनट्स के लिए ट्रेन वाई स्टॉप करती है, और ये स्टेशन सी का लोकेशन भी गिवन है, दैट इज 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम स्टेशन बी इन रूट टू स्टेशन ए। दिस लोकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस लोकेशन पे डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्यों डिपेंड करेगा ये भी समझेंगे। 15 मिनट्स के लिए हाल्ट करती है यहाँ पे, और 60 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम स्टेशन बी इन रूट टू स्टेशन ए। ओके, सो लेट अस से दिस इज द लोकेशन ऑफ स्टेशन सी एंड दैट इज 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम स्टेशन बी। ओके, Now if that is so, तो ट्रेन Y को कितना टाइम लगेगा स्टेशन C पहुंचने में? 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड है 50 का, तो टाइम टेकन विल बी 60/50, यानी कि 1.2 आवर्स का टाइम लगेगा। Isn't it so? और ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ट्रेन Y जो हमारी है वो हॉल्ट ले रही हो और तभी ट्रेन X आ जाए स्टेशन सी पे, दैट इज पॉसिबल। तो इसीलिए हमें चेक करना इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहां पे है स्टेशन सी का, उस पर हमारा आंसर डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर हमारे ये स्टेशन सी बहुत आगे हो, लेट अस से इंस्टेड ऑफ यहाँ के बजाय ये बहुत आगे होता, ठीक है, तो उससे पहले ही मिल रही होती, ये भी पॉसिबल था, या बीच में कहीं पे होता, तो उस केस में ये पॉसिबल था कि यहाँ पे हॉल्ट ले रही होती ट्रेन बी और उस समय पे ट्रेन वाई, और उसी समय पे ट्रेन एक्स आ जाती। तो देयर आर 3 पॉसिबल केसेस। क्लियर है? एक केस ये बन सकता है कि जबकि ऑलरेडी हॉल्ट लेके ट्रेन आगे निकल चुकी हो, जो कि हमारा प्रेजेंट केस है एक्चुअल में। ठीक है, सेकंड केस ये बन सकता है कि ट्रेन हॉल्ट ले रही हो और उस समय ट्रेन आ जाए, ट्रेन एक्स आ जाए और दोनों की मीटिंग हो जाए। थर्ड केस ये हो सकता है कि हॉल्ट लेने से पहले ही, यानी कि हॉल्ट कहीं बहुत आगे हो, उससे पहले ही दोनों ट्रेन का मीटअप हो जाए। तो हमें ये समझना जरूरी है इन तीनों में से कौन सा केस हमारा इस पर्टिकुलर केस में बन रहा है। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस टाइम टेकन इज 1.2 आवर्स फॉर ट्रेन वाई टू रीच स्टेशन सी, और ट्रेन एक्स को स्टेशन सी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 70 की स्पीड है, एंड दिस डिस्टेंस विल बी टोटल, क्योंकि हमारा 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस विल बी 120 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन ए टू रीच स्टेशन सी दैट विल बी 120/70, विच इज 12/7, यानी कि 1 and 5/7 आवर्स। और यहाँ पे 15 मिनट्स का हॉल्ट ले रही है ट्रेन वाई, यानी कि 1.2 आवर्स, विच इज 60 + 12 72 मिनट्स + 15 87 मिनट्स 77 मिनट्स तक ये ट्रेन वाई हमारी स्टेशन सी पे रहने वाली है। 62 मिनट्स पे तो ऑलरेडी पहुंची है, प्लस 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। और ट्रेन एक्स को जो पहुंचने में लगने वाला टाइम है दैट इज ग्रेटर देन 77 मिनट्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसा दिया है, यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चल सकते हो, तुम्हें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कब पहुंच रही है ट्रेन ए स्टेशन सी पे। अगर इग्नोर करके कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में इग्नोर करने पे भी शायद तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाता, बट ध्यान रखना है ये, क्योंकि कोई और क्वेश्चन होता तो पॉसिबल है कि तुम्हारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। क्या ये बात क्लियर है?
डेफिनेटली ट्रेन ए को ज़्यादा टाइम लगने वाला है, यानी कि हॉल्ट लेने के बाद में ट्रेन वाई ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी और उसके बाद में फिर ट्रेन एक्स से उसका मीटिंग कहीं आगे होगा. तो इफ दिस इज स्टेशन सी, ठीक है, दे विल बी मीटिंग समवेयर हियर, समवेयर आफ्टर दिस स्टेशन सी. ओके, अब हमको ये पता है कि स्टेशन सी पे 15 मिनट्स का हॉल्ट दिया है ट्रेन वाई ने, तो 15 मिनट्स के लिए ट्रैवल नहीं किया है. 15 मिनट्स के लिए ट्रेन वाई ने ट्रैवल नहीं किया है, जबकि ट्रेन एक्स नॉन स्टॉप ट्रैवल करते रही है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई हैं. तो टाइम ऑफ मीटिंग क्या होगा? अगर 15 मिनट्स के लिए ट्रेन वाई ने ट्रैवल नहीं किया है तो कितना डिस्टेंस कम ट्रैवल किया होगा? 50/3, 50/4, 15 मिनट्स यानी कि 1/4 आवर. तो 15 मिनट से कितना कम ट्रैवल किया होगा? 50/4 कम ट्रैवल किया होगा. Isn't it so? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 10x एंड 10y वो तो 180 किलोमीटर ही आएगा. बट ट्रेन वाई ने जो टोटल टाइम है उसमें 50/4 किलोमीटर कम ट्रैवल किया होगा. Isn't it so? तो अगर हमें निकालना है कि एट व्हाट टाइम दीज ट्रेन्स विल बी मीटिंग, तो दैट टाइम विल बी इक्वल टू टोटल ट्रैवल डिस्टेंस बाई बोथ द ट्रेन्स डिवाइडेड बाई देयर रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड आ गया 70 + 50 120. ओके, ठीक है. और ट्रेन वाई ने नहीं ट्रैवल किया है जो डिस्टेंस, उतना हमको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज उतना टाइम ट्रैवल ही नहीं किया. तो या तो उतना डिस्टेंस को एडिशनली हम ऐड कर दें, यानी इस बात का मतलब ये हो कि 180 किलोमीटर ट्रैवल करते, बट यहाँ पे 15 मिनट्स तक ट्रेन वाई ट्रैवल नहीं की है. तो अगर वो ट्रैवल करती 15 मिनट्स और एक्स्ट्रा, तब हमें दोनों का नॉन स्टॉप एक्चुअल में टाइम का वैल्यू मिल जाता. ठीक है, तो टाइम का वैल्यू क्या होता, यानी कि 180 + 50/4. अगर ये ट्रेन वाई 15 मिनट्स और ट्रैवल की होती है तो इन दैट केस, और क्योंकि ट्रैवल नहीं किया इसलिए वो हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस में. ठीक है, सो दिस विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट केस और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, दैट विल बी 70 + 50 यानी 120. तो यहां से हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि क्योंकि ट्रेन एक्स हमारी 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ट्रैवल की है, ट्रैवल्ड 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, और 15 मिनट से कितना ये ट्रैवल की होगी उतना डिस्टेंस हम निकाल लें और उतने डिस्टेंस को पहले हम सबट्रैक्ट कर दें अपनी टोटल डिस्टेंस में से. सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 माइनस 15 मिनट से ट्रैवल किया होगा 70/4. तो रिमेनिंग डिस्टेंस हुआ 180 माइनस 70/4 एंड दिस डिवाइडेड बाई 120. इन बोथ दीज केसेस हमारा जो टोटल टाइम का वैल्यू है सेम ही आएगा. तो किसी भी एक तरीके से हमें इसको सॉल्व कर लेना है. और यही सेम चीज हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात समझ में आ रहा है? पहला तरीका हमने क्या अप्लाई किया कि हमें पता है कि ट्रेन वाई हमारा 15 मिनट्स के लिए हॉट लिया है एट स्टेशन सी, तो वी एडेड 15 मिनट्स का ट्रैवल डिस्टेंस फॉर ट्रेन वाई, तो दैट हमारा टोटल टाइम एक ही स्टेप में निकला है, एक ही स्टेप में निकला है. ठीक है, अदरवाइज हमको इक्वेशन बनाना पड़ता है. इक्वेशन हम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 180 किलोमीटर का, ट्रेन एक्स ट्रैवल की है टी आवर्स के लिए, तो 70 × t विल बी ट्रैवल डिस्टेंस बाई ट्रेन एक्स. और ट्रेन वाई t - 1/4 आवर के लिए ट्रैवल किया है, तो इसकी ट्रैवल डिस्टेंस होगा 50 × t - 1/4 एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 180. तो चाहो तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो. अगर बिल्कुल बात पल्ले नहीं पड़ रही है तो स्टेशन इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर लो. ठीक है, अदरवाइज अगर बात समझ में आ रही है तो पहला केस हमारा ये है कि हम ट्रेन वाई का एडिशनल डिस्टेंस ऐड कर दें 15 मिनट जो उसने ट्रैवल नहीं किया है, सो दैट हम एक स्टेप में अपना टाइम निकाल सकें. या फिर हम ये कर दें ट्रेन एक्स ने जो 15 मिनट्स में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम सबट्रैक्ट कर दें. दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम ही आ जाएगा. ठीक है, सो वैल्यू क्या आ जाएगा 180 × 4 720 + 50 770 by 4 × 120. तो 0 से गया 0, दिस विल बी 77/48. ओके, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेकंड वाले केस में एक गड़बड़ कर दिया कि यहाँ पे जब हम 70/4 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमने सबट्रैक्ट किया है तो फिर 1/4 आवर हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट्स का हमने वो जो डिस्टेंस सबट्रैक्ट किया है 15 मिनट्स ट्रैवल तो किया है ना. ठीक है ना, तो ट्रैवल टाइम में हमें 1/4 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इस चीज़ को मिस कर दिया था यहाँ पे, ये 1/4 हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. क्लियर? तो 77/48 ये हमारा टोटल ट्रैवल टाइम आ गया. क्वेश्चन ये पूछा है फ्रॉम स्टेशन ए टू द पॉइंट वेयर द ट्रेन क्रॉस ईच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट किलोमीटर. यानी कि हमें ये डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू द पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको इस क्वेश्चन में निकालना है. टाइम की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे. डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए दैट विल बी इक्वल टू 77/48 × 70 और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आनी है इंटीजर में, तो ये 24 हो जाएगा. दिस विल बी 35 और 35 × 7 कितना आता है 30 × 7 210 प्लस 245, तो 245 का 5 हो गया और 24 बच गया. 245 + 24 2695 डिवाइडेड बाई 24.
तो ये हमारी वैल्यू आ गई। 24 से 1 टाइम्स जाएगा, फिर बचा 29, अगेन 1 टाइम्स जाएगा, फिर बच गया हमारा 55, 2 टाइम्स जाएगा और बचा 7। तो 112.3 किलोमीटर हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, 112.3 किलोमीटर, क्योंकि हमें नियरेस्ट किलोमीटर तक जाना है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 112। ऑप्शन ए 112 विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या बात कह रहे हैं? तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई बिलीव क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, तो इक्वेशन का भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिए थे, यहाँ से भी सॉल्व करोगे टी की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। हाँ, सेकंड वाले केस में ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1/4 हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट वाला केस ज़्यादा बेटर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A coolie standing on a railway platform observes that a train going in one direction takes 8 seconds to pass him. Another train of double the length going in opposite direction takes 12 seconds to pass him. Find the time taken by the two trains to cross each other completely. तो एक ट्रेन हमारी जा रही है एक डायरेक्शन में जो कि ले रही है 8 सेकंड्स का टाइम, एक दूसरी ट्रेन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, डबल लेंथ है उसका, और द सेकंड ट्रेन इज टेकिंग 12 सेकंड्स का टाइम। तो फर्स्ट ट्रेन का हमें लेंथ गिवन है एल और सेकंड ट्रेन का लेंथ गिवन है हमें 2l। टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन इज 8 सेकंड्स टू क्रॉस द कूली, ठीक है, और टाइम सेकंड टेकन बाय द सेकंड ट्रेन इज 12 सेकंड्स टू क्रॉस द कूली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यूज गिवन है, लेंथ का रेशियो भी गिवन है, तो इससे हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। तो जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल लेंथ ट्रेवल्ड होगा l + 2l, और स्पीड भी हमारी एडअप हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। टाइम के स्पीड का रेशियो निकालते हैं। टाइम की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, टाइम है 8 सेकंड्स और 12 सेकंड्स फॉर द फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ट्रेन, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2। और डिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस का रेशियो 1:2 का, डिस्टेंस का रेशियो 1:2 का। डिस्टेंस क्या है? बेसिकली कूली को क्रॉस कर रही है, तो यानी कि अपनी लेंथ, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ अगर 1 यूनिट है, सेकंड की 2 यूनिट्स है, क्योंकि सेकंड की जो लेंथ है दैट इज डबल। 1:2 का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा हमारा फर्स्ट केस में डिस्टेंस बाय टाइम 1/8, और सेकंड केस में 2/12 यानी कि 1/6। 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशियो आ जाएगा हमारा 3:4। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:4 का। क्लियर? यहाँ पे हम अब लेंथ एज्यूम कर सकते हैं। अगर 3:4 का रेशियो है, मान लेते हैं कि स्पीड है पहली ट्रेन की 3 मीटर पर सेकंड, टाइम लग रहा है 8 सेकंड का। दूसरी ट्रेन की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, टाइम लग रहा है 12 सेकंड का। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा पहली ट्रेन का 8 × 3 यानी कि 24 मीटर्स, और सेकंड ट्रेन का ऑब्वियसली 12 × 4 यानी कि 48 मीटर्स, डबल आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने स्पीड की वैल्यूज को एज्यूम कर लिया है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होंगी तो टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो कि होगा l + 2l यानी कि 24 + 48 दैट विल बी 72 मीटर्स, और स्पीड का समेशन कर देंगे 3 + 4 यानी कि 7, 72 मीटर्स बाई 7 मीटर्स पर सेकंड। तो 72/7 सेकंड्स विल बी द आंसर। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो स्पीड का डिफरेंस लेते, 1 यूनिट आता। ठीक है, तो 72/7 सेकंड्स में दीज ट्रेन्स विल बी क्रॉसिंग ईच अदर कंप्लीटली। क्या बात क्लियर है? हमें नहीं पता कि लेंथ क्या है दोनों का, ट्रेन का लेंथ का रेशियो पता था, हमें लेंथ की वैल्यू नहीं पता थी, स्पीड भी नहीं पता थी, बट हमें टाइम टेकन का रेशियो पता था, टाइम टेकन की एग्जैक्ट वैल्यू पता थी, तो यहां से हमने टाइम की ही वैल्यू निकाली है। ठीक है, सो वी कैन डेफिनेटली डिटरमाइन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि डिटरमाइन नहीं कर सकते, आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, बाकी अगर अपने एंड पे तुम सॉल्व करना चाहो तो हमने लेंथ का वैल्यू माना ही था l और 2l, और यहाँ से रेशियो भी निकाल लिया था। ठीक है, रेशियो में अगर डिस्टेंस को 1 और 2 की बजाय 1l और 2l लिखोगे तो भी यहाँ पे रेशियो, अल्टीमेटली रेशियो में तो l तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो तो 3:4 ही आएगा, l तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ठीक है, अब स्पीड तुम मान लो 3x और 4x, और अकॉर्डिंगली सॉल्व करो तो यहाँ पे x भी तुम्हारा अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाने वाला है, बचेगा नहीं फाइनली। ठीक है, बिकॉज टाइम तुम्हारा कितना है? टाइम 1 सेकंड। लेंथ कितनी आएगी? लेंथ तुम्हारा जब तुम 3x और 4x मानोगे तो उससे लेंथ भी तुम्हारी आ जाएगी x के टर्म्स में, और जब रेशियो निकालोगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Train A of length 450 meters is going from station P to Q with a speed of 90 km/h. Another train B of length 270 meters is going from station Q to P on a parallel track. The trains cross each other in 18 seconds. On another day, some wagons were added to the train B on its return journey from station P to Q. Hence, train A crossed train B in 84 seconds while running in the same direction. So find the new length of train B. Pause the video and try to solve it. ठीक है, सो क्वेश्चन ये कह रहा है
कि फर्स्ट डे जिसके लिए बात हो रहा है, ट्रेन ए की लेंथ है 450 मीटर्स एंड ट्रेन ए इज गोइंग फ्रॉम स्टेशन पी टू क्यू। एंड ट्रेन बी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ट्रेन ए का स्पीड है 90 और ट्रेन ए की लेंथ है 450 मीटर्स, ट्रेन बी की लेंथ है 270 मीटर्स। ट्रेन बी की स्पीड हमें गिवन नहीं है, बट वी नो दैट दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स में क्रॉस करें, टोटल लेंथ ट्रेवल कितना होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, टाइम टेकन इज 18 सेकेंड्स, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस है हमारा 450 प्लस 270 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सो दिस इज 720 बाई रिलेटिव स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी 720 बाई 18 विच इज 40 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में दिस विल बी 40 इंटू 18 बाई 5, तो 18 इंटू 8 144 किलोमीटर पर आवर। क्या बात कह रहे हैं? ठीक है, 144 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्पीड आ गया, रिलेटिव स्पीड। फर्स्ट ट्रेन की हमें स्पीड पता है 90 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे 90, बिकॉज ट्रेन जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है स्पीड एडअप होगा, तो सेकंड ट्रेन की हमें स्पीड मिल जाएगा, दैट विल बी 54 किलोमीटर पर आवर। फाइन। इन अनदर डे सम वैगन्स वर एडेड टू द ट्रेन बी ऑन इट्स रिटर्न जर्नी फ्रॉम स्टेशन पी टू क्यू, यानी कि अब ट्रेन बी का लेंथ हमारा चेंज हो गया है। Hence train A crosses train B in 84 seconds while running in the same direction. So find the new length. Easy question है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब सेकेंड डे पे क्रॉस करेगा ट्रेन और बी एक दूसरे को, ट्रेन ए की लेंथ है 450 मीटर्स और ट्रेन बी की लेंथ लेटर से एल है। ट्रेन ए का स्पीड है 90 और ट्रेन बी का स्पीड है 54, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ लेंथ 450 प्लस एल डिवाइडेड बाई, सब्ट्रैक्ट करोगे स्पीड्स को 90 माइनस 54 यानी कि 36, बट ये किलोमीटर पर आवर में है तो इनटू करोगे 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू आएगा, एंड टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 84, तो यहाँ से 450 प्लस एल की वैल्यू आ जाएगा 840 इंटू 10, 884 इंटू 10 यानी कि 840 मीटर्स, और यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन बी विल बी इक्वल टू 390 मीटर्स, so that will be our answer. Length of train B will be 390 meters. Clear? Okay. Next question. Next question is saying train A leaves from station P to Q at 6 a.m. with the speed 72 km per hour, while train B left from station Q to P at 8 a.m. The distance between stations P and Q is 252 kilometers. At 8:24 a.m., trains A and B are observed to be 48 kilometers apart, facing each other on parallel tracks. At what time will the trains cross each other? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है। ये गिवन है कि ट्रेन ए स्टार्ट करती है फ्रॉम स्टेशन पी टूवर्ड्स क्यू एट 6 a.m. एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 72 किलोमीटर पर आवर। 6 a.m. पे स्टार्ट करती है फ्रॉम स्टेशन पी, एंड ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन क्यू, बट इट स्टार्ट्स एट 8 a.m. 6 a.m. पे नहीं स्टार्ट करती है, स्टार्ट करती है 8 a.m. पे, और स्पीड हमें ट्रेन बी का गिवन नहीं है, बट व्हाट वी नो दैट टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू इज 252 किलोमीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 252 किलोमीटर्स बिटवीन स्टेशन ए पी एंड क्यू। फाइन। At 8:24 a.m., trains A and B are observed to be 48 kilometers apart, facing each other on parallel tracks. Facing each other on parallel tracks का मतलब क्या हुआ कि अभी भी वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है, they are facing each other, और उनके बीच का जो गैप है that gap is equal to 48 kilometers, and this is at 8:24 a.m. isn't it so? Okay, तो 6 a.m. से लेके 8 a.m. तक तो ट्रेन ए हमारी अकेले चलेगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी 6 a.m. से 8 a.m. तक, 2 आवर्स में ट्रैवल करेगी, 2 इंटू 72 यानी कि 144 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड, एंड इफ दैट इज सो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा बच जाएगा 108 किलोमीटर्स। नाउ बोथ ट्रेन्स ए एंड बी आर ट्रैवलिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रेन ए का स्पीड 72 है, ट्रेन बी का स्पीड हमको पता ही नहीं है क्या है, बट व्हाट वी नो दैट 8:24 द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इज 48 किलोमीटर्स, so this distance is 48 kilometers at 8:24। ठीक है, यानी कि 8:24 तक 8 a.m. से
8:24 तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा हमारी ट्रेन ए ने, और दिस मस्ट बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन बी। इजंट इट सो? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल डिस्टेंस था हमारा 108 और अब रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है हमारा 48। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन्स ए एंड बी इन 24 मिनट्स कितना आएगा? दैट विल बी 108 माइनस 48, 60 किलोमीटर्स। अगर 24 मिनट्स में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ से हमें रिलेटिव स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज 24 मिनट्स इज 2/5 आवर्स। तो रिलेटिव स्पीड हमारा आ जाएगा 60 इंटू 5/2। भाई 24 मिनट से ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में करेगा 2.5, 60 मिनट्स में करेगा 2.5 इंटू 60 यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी अवर रिलेटिव स्पीड। और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 72, सेकंड ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं SB, तो हमारा सेकंड ट्रेन यानी कि ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है ये बात? बट क्वेश्चन क्या हमसे ये वैल्यू पूछ रहा था, ये हमने समझने के लिए निकाला है, बट एज सच क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रेन बी की स्पीड निकालने की कोई जरूरत थी? कुछ भी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन ए एंड बी इन 24 मिनट्स इज 60 किलोमीटर्स, और अब डिस्टेंस रिमेनिंग बचा है 48 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 24 मिनट में, तो 48 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? भाई 60 किलोमीटर ट्रैवल किया है इन्होंने इन 24 मिनट्स, तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे 24/60 मिनट्स में। 24/60 मिनट्स में, और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा कि 48 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, तो दैट विल बी 24/60 इंटू 48। 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो दिस विल बी 24 इंटू 4, 96/5 विच विल बी 19.2 मिनट्स। तो आंसर आ जाएगा दैट द ट्रेन्स विल बी क्रॉसिंग ईच अदर आफ्टर 19.2 मिनट्स। बट हमें एक्जैक्टली टाइम पूछ रहा है, 8:24 से 19.2 मिनट्स ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 8:24 मिनट्स, 24 + 19 यानी कि 43 हो जाएंगे, और सेकंड्स 0.2 मिनट है यानी कि सेकंड्स में दिस विल बी 12 सेकंड्स। 8:43:12 AM पे द ट्रेन्स विल स्टार्ट क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे लेंथ इज अन इंपॉर्टेंट, लेंथ की वैल्यू हमें कोई गिवन नहीं है। ठीक है, सो 8:43:12 AM पे द ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, क्लियर है ये बात? एंड दिस विल बी स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, अगर इसके बाद में अब ट्रेन्स में हमें लेंथ भी गिवन हो उनका, तो ये स्टार्ट टाइम होगा क्रॉसिंग का, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द टाइम जबकि ये ट्रेन्स हेड टू हेड आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल हेड टू हेड आ जाएंगी, यहाँ पे क्रॉसिंग स्टार्ट होगा। तो अगर ट्रेन की हमें लेंथ भी गिवन होता है कि लेट अस से ट्रेन ए का लेंथ है 400 मीटर्स, ट्रेन बी का लेंथ है 400 मीटर्स, तो हम ट्रैवल टाइम निकाल लेते हैं 800 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड के हिसाब से कितना टोटल टाइम लगेगा और क्रॉसिंग कंप्लीट कब होगी, तो वो एग्जैक्ट टाइम भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें लेंथ की वैल्यू गिवन हो तो पैनिक नहीं करना है, वो भी हम इजिली निकाल पाएंगे। हमने स्टार्टिंग टाइम निकाल लिया है, एंड टाइम भी हमसे निकल जाएगा। सेकंड में निकाल लेंगे कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। और एक और मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन में कि एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स, बाकी इंफॉर्मेशन एक्जैक्टली सेम है, एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स बी 48 किलोमीटर अपार्ट फॉर द सेकंड टाइम। इस बात का मतलब क्या हुआ, 48 किलोमीटर अपार्ट फॉर द सेकंड टाइम। अभी तो ऑलरेडी 48 किलोमीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, बट एट प्रेजेंट अभी जब 48 किलोमीटर से उनके बीच में गैप है, तो द ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और गैप है 48 का। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में दीज ट्रेन्स विल बी मीटिंग, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। बट क्रॉस करने के बाद में क्या होगा, क्रॉस करने के बाद में जो हमारी ट्रेन एक्स, ट्रेन ए है, ये आगे निकल जाएगी, और जो ट्रेन बी है ये अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो अब इनके बीच में गैप वापस से क्रॉस करने के बाद में बढ़ना शुरू होगा, एंड आफ्टर सम टाइम ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में वापस से गैप हो जाएगा हमारा 48 किलोमीटर्स का। ठीक है, सो दिस गैप विल अगेन बी 48 किलोमीटर्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? अच्छा, ये एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जब नेक्स्ट टाइम 48 किलोमीटर्स का गैप होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन इस पोजीशन पे हमारी ट्रेन ए होगी, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उससे आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि स्पीड का रेशियो क्या है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि स्पीड का रेशियो क्या है। बट बहरहाल उस चीज को सेकंड टाइम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 48 किलोमीटर अपार्ट सेकंड टाइम कब होंगे। तो सबसे पहले तो मीट करेंगे, और मीट करने के बाद में अगेन रेडियो स्पीड तो सेम ही है, तो मीट करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम फिर मीट करने के बाद 48 किलोमीटर का डिस्टेंस होने में लगेगा। और हमने ऑलरेडी मीटिंग करने का टाइम निकाल लिया है कि दे विल बी मीटिंग आफ्टर 19.2 मिनट्स। तो 48 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 19.2 मिनट्स में, और फिर से उनके बीच में गैप होना है 48 का।
गैप होने में फिर से 19.2 मिनट्स लगेंगे, यानी कि 19.2 प्लस 19.2, दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, दैट विल बी अवर आंसर। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, और 824 में ऐड कर दोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, अब उस पॉइंट पे बात कर रहे थे जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें पता है ट्रेन ए और बी का स्पीड की वैल्यू गिवन है कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 78 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड्स का रेशियो क्या आ रहा है? ए और बी का स्पीड का रेशियो आ रहा है हमारा 12:13 का। इज दैट इट सो? तो अभी जब ये 48 किलोमीटर अपार्ट है ट्रेन ए और ट्रेन बी, तो जब ये मिलेंगे, भाई मिलेंगे सेम टाइम ट्रैवल करेंगे, टाइम तो सेम होगा दोनों के लिए, टाइम टी ट्रैवल करेंगे, इज दैट इट सो? और अगर दोनों ट्रेन सेम टाइम ट्रैवल कर रही हैं तो ट्रेन ए ने कितना ट्रैवल किया होगा? अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ट्रैवल किया होगा, क्योंकि स्पीड विल प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, अगर टाइम सेम है तो। यानी कि 12 यूनिट्स ट्रैवल किया होगा ट्रेन ए ने और ट्रेन बी ने ट्रैवल किया होगा 13 यूनिट्स। क्या पार्ट क्लियर है कि ट्रेन ए ने ट्रैवल किया होगा 12 मिनट्स और ट्रेन बी ने ट्रैवल किया होगा 13 मिनट्स। अब मिलने के बाद में वापस से ये अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे, तो ट्रेन ए हमारी आगे पहुंच जाएगी और ट्रेन बी इस डायरेक्शन में आगे पहुंच जाएगा। अगेन इनके बीच में सेम डिस्टेंस हो जाएगा जो पहले था, बट अब इस बार क्या होगा? ट्रेन ए इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, यहां ट्रैवल कर रही है, तो दिस विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ए आफ्टर द मीटिंग पॉइंट, इजंट इट सो? तो सेम टाइम अगेन होगा 48 किलोमीटर की डिस्टेंस होने में, अभी भी तो सेम टाइम है, दोनों ट्रेन सेम टाइम ट्रैवल किए। तो अगर ट्रेन ए हमारी ट्रैवल की होगी 12 यूनिट्स तो ट्रेन बी ने ट्रैवल किया होगा 13 यूनिट्स, इजंट इट सो? यानी कि इफेक्टिवली पहले जब ट्रेन बी इस पोजीशन पे थी तो 13 यूनिट्स की डिस्टेंस पे थी, और अभी जब ट्रेन ए यहाँ पे आई है तो 12 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है, यानी कि इनके बीच में गैप है। और सिमिलरली यहाँ पे भी कि पहले जब ट्रेन ए यहाँ पे थी तो 12 यूनिट्स की डिस्टेंस पे थी, अभी ट्रेन बी 13 यूनिट्स की डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे ये गैप है। तो दोनों सेम पोजीशन पे नहीं होंगे, डिपेंड करेगा, अगर उनकी दोनों की स्पीड सेम है तब तो सेम पोजीशन पे होगा, अदरवाइज डिफरेंस रहेगा वहाँ पे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्यों रहे? क्लियर? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं वो समझ में आएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। अगर सेशन पसंद है उसको लाइक जरूर करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।